ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਸਿੱਚੇਵਾਲ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਮਿਲਣ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਬੜੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਈ ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਪੁੱਛਿਆ। ਸਾਡਾ ਅੱਧਾ ਦਰਦ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਦਦ ਲੈ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਦੇ ਸਾਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਲੈਟਰ ਸਾਡਾ ਲੈਟਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਸ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਗਏ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਖ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸ਼ੀਆ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਆਏ 2-3 ਵਾਰੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜੇ 85 ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਜੋਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ 5 ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 6 ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਪਕ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕਨਈਆ ਯਾਦਵ ਜੀ, ਰਕੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਜੀ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਰ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ। और अजहरुद्दीन है, धीरेन्द्र है। धीरेन्द्र है, विनोद यादव है। एक पुणे से लड़का है जो एक ग्रुप मेरे को गाइड किया गया था बाबा जी की तरफ से कि एक ग्रुप बना लो, सभी के जितने बंदे मिसिंग है। मैंने भाग दौड़ करके फिर थोड़ा सा ग्रुप क्रिएट करना चाहा, एक ग्रुप बनाया सभी का जितने बंदे मिसिंग हो रखे हैं। तो फिर उनमें से जब मैंने एक वीडियो डाला तो वीडियो को देखकर पुणे से मेरे को एक कॉल आई थी कि ऐसे ऐसे करके हमारा लड़का भी मिसिंग है। तो उनका ओम चंद्रकांत लड़का, पुणे का लड़का, मुंबई साइड का लड़का है। तो वो भी बहुत परेशान है। वो भी जनवरी तो तकरीबन जनवरी तो ही ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। योगेंद्र, रामचंद्र और अरविंद ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾ ਫਸਲਾ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਮੇਨ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਫਰਾਡ ਉਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗ ਏਜੰਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਠੱਗ ਏਜੰਟ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਡਰਨ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਚੋਂ ਰੁਪਈਏ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਡਏ ਆ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਡੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਫਰਜ਼ੀ ਏਜੰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਫਰਜ਼ੀ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਗੈਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂ? ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਾਹੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਵਾਇਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਸ਼ਣ ਦਵਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਫਸੇ ਆ, ਜਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੱਦਾ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮੈਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਉਦਾਂ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਇਹ ਰਸ਼ੀਆ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਤੇ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ? ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਉਸ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਬਰਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਰਸ਼ੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ 20 ਤੋਂ 25 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। हालातों में गए थे, किन हालातों में वहां पर रहे और संत सीचेवाल से कैसे आप करा? पहले तो मीडिया भाई को मेरा नमस्कार। मैं राकेश यादव, जो कि आजमगढ़ का रहने वाला हूं, और यहाँ से हमें जो एजेंट था वो गार्ड की नौकरी के लिए बोलकर लेकर गया था हम लोगों को। तो यहाँ से जब हम लोगों को टूरिस्ट वीज़ा पर लेकर गया, टूरिस्ट वीज़ा पर लेके जाने के लिए एजेंट पंजाब का रहने वाला था? एजेंट ये नहीं पता कहाँ का है, उसका नाम दुष्यंत है और सुमित है और सुल्तान है, ये 3 लोग एजेंट हैं। और जब हमें यहाँ से लेकर गए तो संपीटरबर्ग में लेकर गए थे। वहाँ पर किसी पेपर पर हम लोगों से सिग्नेचर लेने लगे। तो जब हमने पूछा कि इस पे क्या चीज़ लिखा हुआ है, वो रशियन भाषा में लिखा हुआ था, तो बोले कि एक गार्ड की नौकरी करने के लिए आए हो तो उसी का पेपर है। तो हम लोगों ने उन पर विश्वास कर उस पर सिग्नेचर कर दिए। जब सिग्नेचर करने के बाद फिर हमें बोला गया था कि आपको 15 दिन की ट्रेनिंग होगी। तो हमने पूछा कि ये ट्रेनिंग किस लिए होगी? तो बोल रहे हैं कि खुदा न खास अगर आप पे कोई दिक्कत होगी तो आप इसीलिए आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो हमने बोला ठीक है। तो जब 15 दिन की ट्रेनिंग वहाँ पर भेज दिया गया तो हमने वहाँ पर 15 दिन की ट्रेनिंग दी। तो देने के बाद ट्रेनिंग में क्या था? वो ट्रेनिंग में वही हथियार चलाने के लिए। तो उसके बाद में जब 15 दिन हथियार, अब 15 दिन में कोई कितना हथियार चलाना सीख लेगा। आज इतना पर चला कर आते थे तो शाम को भूल जाते थे, बस यही फॉर्मेलिटी करते थे वो लोग। और उसके बाद में फिर वहाँ से हमें बोला गया कि आपको यूक्रेन भेजा जा रहा है। तो फिर हम बोले कि हमें किस लिए यूक्रेन भेजा जा रहा है? तो हम बोले कि हम नहीं जाएंगे। तो फिर उन्होंने मार पीट कर ज़बरदस्ती फिर गाड़ी में डाल दिए। फिर हमें यूक्रेन लेकर गए। जब यूक्रेन लेकर गए वहाँ पर तो बोले कि आपको लड़ाई में जाना होगा। हमने बोला कि भाई हम तो कुछ सीखे ही नहीं है बंदूक चलाना, तो हम किस लिए जाएंगे लड़ाई में? तो उन्होंने बोला नहीं, आपको जाना ही होगा। ये जो पूरी वार्तालाप आपकी हुई है, जैसे आपने बताया कि रशियन भाषा जैसे आपको नहीं समझ में आ रही, कोई ट्रांसलेटर वगैरह दिया गया था आपको, जैसे आपने अपनी बात को समझाया? नहीं, हम लोग बस अपने मोबाइल से ही ट्रांसलेट करते थे जी। हाँ, यही पूछते थे कि हम लोग अब कहाँ जा रहे हैं, तो वो लोग बताते थे।
कि आपको ये करना है। तो उसके बाद में जब हम लोगों को वार में लेकर गए तो ये नहीं, वहाँ पर इतने हालात बदतर हैं कि कब किसको क्या हो जाए कुछ भी नहीं पता कि। और बाकी जो एजेंट हैं, जो वहाँ की सरकार जो कि पैसे हमें भेजती थी हमारे अकाउंट में, एटीएम वो लोग ले लिए थे, जो कि एजेंट ने। तो जितना पैसा आता था सारे एजेंट पैसे निकाल लेते थे। हर महीने का जो भी सैलरी थी वो सारा पैसा हम लोगों को निकाल लिया थे। जो निकालने के बाद अब हमारा ही जो 45 लाख रुपए वो लोग निकाल लिए हैं। तो उसके बाद में जब हमें वार जोन में भेजा गया तो वहाँ पर ले जाकर वो लोग छोड़ देते थे। बाकी आप किधर जा रहे हो, किधर रसिया है, किधर यूक्रेन है, ये हम लोगों को नहीं पता कि कहाँ पर हम लोग आए हैं इस समय। तो उसके बाद में फिर उसके बाद में हमें ड्रोन से चोटें लग गई, तो उसके बाद में हमें हॉस्पिटल भेज दिया गया। बाकी अभी जो भाई वहाँ पर फंसे हुए हैं, अगर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए तो वो लोग बच सकते हैं। देखिए, जैसे आपने बताया कि एजेंट जो है आपके मतलब एटीएम वगैरह जब्त किए गए थे उनकी तरफ से या कुछ, एजेंट का काम वहीं पे खत्म नहीं होता जब आपको वहां पर छोड़ दिया गया, के बाद में भी एजेंट आपके टच में था? जैसे आपको आपके ये जो तनख्वाह जो उस सरकार की तरफ से आपको दी जा रही थी, हाँ। वो एजेंट ने कैसे जब्त किया आपका? तो वही एटीएम उनके पास था, हम पहले से ही एटीएम उनके पास था, अकाउंट नंबर उनके पहले से पहले से। और जो उसके बारे में आपके परिवार को कुछ पता नहीं था? नहीं, परिवार को कुछ नहीं पता था। परिवार से कैसे राब्ता हुआ आपका फिर? तो जब परिवार को कैसे बताया आपने? जब हम 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद जब फंस गए तब फिर हमें घर बताना चाहा कि घर बता देंगे तो हमें कुछ न कुछ मतलब हम लोग बच सकते हैं। तब जाकर हम लोग परिवार को बताएं। तो परिवार वालों ने एमबीसी में, विदेश मंत्रालय में, जहाँ जहाँ उनका बना वहाँ अपना सोर्स पानी लगाए वो लोग। हाँ, संत सीचेवाल से कैसे बातचीत हुई, कैसे राब्ता कैसे हुआ? बस इसी तरह मतलब एक दूसरे के, आपने परिवार को बताया? हाँ, तो परिवार यहाँ पर मिला हाँ, एक दूसरे से कांटेक्ट होते गए तो धीरे धीरे सीढ़ी से चढ़ते गए तो सबसे वार्तालाप हुआ। कितना टाइम रहे वहाँ पर आप? हम लड़ाई में 11 दिन ही थे और कुछ लड़के ऐसे थे कि 3-3 महीने 6-6 महीने से वहीं पर पड़े हुए थे और न घर पे बात हो रही है किसी का, न कुछ भी नहीं हो रहा है। बाकी हम जिनसे मिले बस वही सब रो रहे थे, भाई अगर जो भी आगे जाएगा, घर जो भी पहले पहुंचेगा, आप लोग यही रिक्वेस्ट करिए कि हम लोग भी बचकर आ जाएं। गोलीबारी में भेजा गया आपको जब गोलीबारी हो रही थी? हाँ, वहाँ पर जब गोलीबारी हो रही थी तो वहाँ पे यही है कि आप जा रहे हो फिर वापस आओगे कि नहीं, कोई अता पता नहीं था। आप जा रहे हो 5 मिनट बाद वहाँ पहुँच गए तो पता चला कि अरे भाई वो तुम्हारा साथी नहीं रहा, तो बड़ा दुख होता था। मैं तो अपने आप को खुद गोली मारने जा रहा था तो उन भाइयों ने मुझे पकड़ लिया, अरे भाई ऐसा मत करो, आप जल्दी ही घर चले जाएंगे हम लोग। सुसाइड कमिट करने की कोशिश की? सुसाइड, हाँ। मतलब ऐसा क्यों, हार मान गए थे आप? मैं हार मान गया था कि मैं अब बचकर नहीं जा पाऊंगा। ऐसे हालात थे कि कुछ कहा नहीं जा सकता, बहुत मौत से भी बदतर वो हालात थे। अगर चाहते कि हम सोच रहे थे कि अगर गोली मार लेंगे तो आसान मौत तो हो जाएगी, बदतर तो जिंदगी नहीं होगी, बस हमें यही लगा था। तो हम जब भी सुसाइड करने जा रहे थे कोई न कोई हमें पकड़ लेता था, भाई आप ऐसे मत करो, हम भी लोग हैं, हम लोग भी चाह रहे हैं कि इंडिया किसी न किसी तरह इंडिया चले जाए। ऐसे कोई भारतीय नौजवान है जो उस जंग में जो मारे गए हो या जिनकी मौत हो चुकी हो? हाँ, मेरा साथी था एक सुनील यादव, वो मऊ का रहने वाला है, उनकी भी डेथ हो चुकी है वहाँ लड़ाई में ही, और उनकी डेड बॉडी भी घर आ चुकी है। कितने टाइम बाद आई? डेड बॉडी आई थी 3-4 महीने बाद। उस सरकार की तरफ से कोई मदद की गई उस बंदे की? अब सरकार की तरफ से तो वहाँ पर रसिया में ही सरकार की तरफ से जो मदद होती थी तो वो एजेंट ही निकाल लेते थे, तो किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि सरकार वहाँ की मदद कर रही है कि नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं पता चला। सुनील के परिवार को अब तक कुछ मिला है कि नहीं? कुछ भी नहीं मिला है। जिस एजेंट के थ्रू गए आप, उस एजेंट से कैसे आपकी बातचीत हुई? जैसे कि एक विनोद करके था, वो मेरा साथी था, उनको एक जरिया लोग बनाए थे कि बस उनको अगर पकड़ेंगे तो वो सारे लड़कों को हमको लेकर देंगे।
तो वो बोले कि, हमने बोला कि भैया मैं नहीं जाऊंगा। वो बोले भाई मैं खुद चल रहा हूँ, अच्छा काम है, गार्ड की नौकरी है और अच्छा पैसा है, गरीबी हम लोगों की दूर हो जाएगी, यही बोलकर हम लोगों को लेकर गए थे। वैसे आपके हिसाब से एजेंट वहीं का रहने वाला था? कहाँ पर पहली बार कहाँ पर मिला आपको एजेंट? एजेंट जो कि एक दिल्ली में मिला था और एक रसिया, 2 रसिया में मिले थे। तो जो दिल्ली वाला एजेंट था वही हम लोगों को संत पीटर्सबर्ग में रिसीव किया था। तो वहां पर जब रिसीव करने के बाद वो ये बोले थे कि अगर यहाँ पर कोई भी दिक्कत होगी तो दुष्यंत भाई यहीं पर हैं, जो कि संत पीटर्सबर्ग में उनका होटल है, होटल चलाते हैं वो। देखो इतने पैसों की खराबी की हुई है, अभी ये कितने पैसे लगा कर गए थे? यहाँ से हम तो 1.5 लाख रुपए दिए थे, कैश दिए थे हाथ में उनको। हाँ, वहाँ जो सरकार आपको खर्चा वर्चा दे रही थी जैसे आपको, वो कितने मतलब पैसे एजेंट ने आपके जो अकाउंट से निकाले अभी तक? अभी तक हमारा अकाउंट से 45 लाख रुपए निकाले, जो कि उनकी डिटेल हमारे पास है। जो एजेंट ने एटीएम से जो पैसे निकाले हैं वो इस समय हमारे पास वो प्रूफ है उनका कि जिन्होंने एटीएम से निकाले जितने पैसे, सारे प्रूफ है आपके? सारे प्रूफ मेरे पास हैं। और सरकार से अब क्या मांग करना चाहते हो? बस अभी वतन वापसी की है आपने, अभी कैसा महसूस कर रहे हो? एक इतनी बड़ी लड़ाई से आप निकल कर वहां से विदेशी चंगुल से निकल कर आए हो, संत सीचेवाल जी ने आपकी बेहद मदद की है इस मामले में, अभी क्या कहना चाहते हो इसमें? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी तो वहाँ पर जो जी मतलब उम्मीद मैं खो चुका था कि मैं जीऊँगा या नहीं जीऊँगा, तो यहाँ पर आकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है कि मैं अपने परिवार में आकर मिला हूँ, परिवार से अपने मिला हूँ, कि खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ। बाकी मैं सरकार से यही विनती करना चाहता हूँ कि जितने भाई फंसे हुए हैं जल्द से जल्द उन लोगों की जान बचाई जाए। अगर कोई कदम जल्द से जल्द उठाएंगे तभी भाइयों की जान बच सकती है, अन्यथा वही आएगी 2 महीने बाद आएगी कि अभी ठीक है, और फिर 6 महीने बाद बात कर रहे हैं कि अब डेड बॉडी उनकी डेथ हो चुकी है। संत सीचेवाल के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? बेशक मैं उनके खिलाफ यही कहना चाहता हूँ कि संत सीचेवाल के लिए कुछ कहना चाहते हैं? बाबा जी के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार इनके सपोर्ट करे, ये जो कहें इनकी बातें थोड़ी धैर्य से ली जाए, मैं यही कहना चाहता हूँ बाबा जी। आप कहाँ के रहने वाले हो? यूपी आजमगढ़ के रहने वाले। मेरा नाम पवन है, मेरे भाई का दीपक है, जो रशिया में जाकर फंस गए हैं। इनसे लास्ट ये घायल होकर आए थे हॉस्पिटल, तो इनसे मेरी 7 जुलाई तक लास्ट बात हुई थी। 7 जुलाई को गए, ड्यूटी जा रहे थे, तो बोले बाबू अब लास्ट बात हो रही है आपसे, अब पता नहीं बात होगी कि नहीं बात होगी, अब सही सलामत आएंगे कि नहीं आएंगे, वही मेरी लास्ट कॉल है। तब से फिर बात नहीं हुई। कितना टाइम हो गया उनको यहाँ से गए? यहाँ से गए हो 10 महीने हो गया। 10 महीने से वहीं फंसे हुए? हाँ 10 महीने से वहीं फंसे। जबरन भर्ती किया गया? जबरन गार्ड की नौकरी बता के ले गया। मारपीट भी? हाँ मारपीट, चोट भी लगी थी इनको ज्यादा। तो लास्ट टाइम बात हुई थी, उन्होंने आपको क्या बताया था? लास्ट टाइम बात हुई तो वही बोले थे कि बाबू बहुत चोट लगी है, वहाँ कैसे हम हैं, कैसे खाने पीने हर चीज की दिक्कत चल रही है। चोट कैसे लगी? ये नाइट से लगी थी। लास्ट टाइम कब बात हुई थी आपकी? 7 जुलाई को। 7 जुलाई को बात हुई जी। इसके बाद बात नहीं? इसके बाद बात नहीं हुई। अभी तक कोई रास्ता नहीं हुआ? कोई रास्ता नहीं, कोई फोन पे या कुछ किसी नहीं, तरह का कोई मैसेज? कोई जानकारी नहीं है। कोई जानकारी इनके बारे में आपको? नहीं। जब लास्ट टाइम बात हुई तो क्या हालात बताए, क्या कहा? हालात बहुत यहाँ बुरे बता रहे थे, कह रहे हैं यहाँ कोई भरोसा नहीं है, एक एक पल की कब क्या हो सकता है, कोई भरोसा नहीं किसी का। अभी आप बाबा जी से मिले हो, आपको क्या आश्वासन दिलाया? बाबा जी से मिले हैं तो उनसे आश्वासन यही है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, सबको जितने भारतीय फंसे हैं सबको वापस बुलाया जाए। अब आगे जो एजेंट हैं इनके ऊपर कार्रवाई की जाए कि दोबारा किसी के साथ ऐसा फ्रॉड न कर सके।